Yeah, good afternoon everyone, good afternoon Imba, good afternoon Soumya, good afternoon Abhiram, right? So I guess all of you remember what we studied in last class, tell me. All of you remember what we studied in last class? Hi Anna, raise your hand. Tell me. Yes? No? Prabhat? Okay. So before starting today's class, right? Before starting, because today would be like problem solving. Okay. Today would be problem solving. We will have a basic revision. Okay, those revision करेंगे. So we will play a Kahoot till everyone join. We will play a Kahoot. ठीक है? So everyone, please start joining Kahoot. Till everyone join, you can just play Kahoot. We will not waste time. Okay, so the code is 8437638. Okay, so this is revision, right? We are doing this revision Kahoot just to freshen up our concepts that we have studied till last class. And now, the first question. Easy, very easy. A car has a fresh storage battery of EMF 12 volt and terminal resistance 5 into 10 ampere. What is the terminal voltage of battery when the starter is on? Tell me. Everyone, think about it. This is based on the concept of internal resistance, right? Okay, Jashan, okay, Meet. Guys, everyone, try to join and try to solve. Okay, so the answer is 7.5 volt. That's correct. Now, let us see those who couldn't solve, right? Let us see. So what is the given in problem? It is EMF, right? We know that when we talk about a battery, right? So battery have some internal resistance. This is the internal resistance of the battery. We have studied this in class 10th also, है ना? So this is 12 volt. This is 12 volt, right? Okay, yes, very good. So if this is E, this is E, this is R, and this is point A, this is point B, this is point B. Now, even if you talk about the concept of KVL, you can calculate that, sir, the potential difference between A and B, VA minus VB, is basically E minus IR, because it is discharging the battery. If you consider this whole as a battery, this is a discharging battery, right? This is a discharging battery, means current is coming out. Yes or no? Right? So if you see, so it will be what? Suppose this is a loop. If you make this as a loop, right? So VA, okay, minus VB plus IR minus E is equal to 0. So if you take E minus IR that side, we will get VA minus VB is equal to E minus IR. Yes or no? Now, you are given what? You are given E. E is given 12 volt given. You are asked to find VAB terminal voltage, है ना? यहाँ से यहाँ बैटरी के टर्मिनल पे वोल्टेज पूछा है. You are asked to find VAB. E is given as 12 minus I is given as 90 ampere, 90 into internal resistance given as 5 into 10 to the power minus 2. So I guess all of you can calculate. The answer would be 7.5 volt. Easy enough, clear. This concept is clear, right? समझ में आ गया ये? सानिया समझ में आया? Everyone got this, right? Hi Anna, Shreya, Priyanka. Okay, next problem. A voltage of 30 volt is applied across a colored carbon, right? Now it is very easy. It is very easy. We studied this in last class. I hope all of you remember. BB Roy of Great Britain, a very good wife. है ना? Color code.
First BB was black brown, right? Bas, Shreyari, Sandesh. You guys are getting? Khushi, Khushi. Khushi is not here. Okay. Okay, let us see. Everyone, let us see. काफी लोगों ने गलत किया है. Yes, Khushi, correct. Now, I hope all of you remember the color code, right? How many of you remember the color code? Sir, color code ही नहीं याद है तो कैसे काम चलेगा? हाँ या ना? Tell me, color code ही नहीं याद है तो कैसे काम चलेगा? काफी दिक्कत है, right? So it is BB Roy, BB. ठीक है? When you talk about BB, first is black, second is brown. Okay, right? BB, then red, orange, yellow, green, blue. So blue is, tell me, on 7th position, so it is 6. Ayana, remember, right? Remember, black, brown, red, BB Roy, orange, yellow. BB Roy of great, green, Britain, this is blue, right? So it is what? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the first, second, and third are blue, black, and yellow. So blue means 6, black matlab 0 into yellow means 10 to the power 4. Yes or no? Tell me. Yes or no? Right? Clear? Right? This is resistance, guys. Resistance given. So easy. So easy. Now I is equal to V by R. So 30 divided by 60 into 10 power 4. So it is 0.5 into 10 power minus 4. Right? Sorry, just pause. Right? Sorry, just pause. Okay? So it is clear. It is clear, everyone. Right? ऐसा गलती नहीं करते हैं एग्जाम में. यू मेक दीज मिस्टेक्स इट विल बी क्वाइट एक्सपेंसिव. ठीक है, ऐसे गलती नहीं करना है. ये सब बहुत बेसिक सवाल है. ठीक है. Tell me, find out the resistance of R in figure. Simple. ये सब बहुत ही वार्म अप प्रॉब्लम्स है. वार्म अप के लिए okay. Okay, Khushi. Khushi. No, not Khushi. Rohit meets Vatsal. Okay. Okay, one student's made mistake, everyone else is correct. So not many are solving, I guess. So I guess all of you understood that, sir, if the potential across this is 100 volt, potential across this is 100 volt, then what is the potential across this? Tell me, using the common concept of KVL, if this point is A, this point is B, this point is C, potential across A and C is 120, potential across B and C is 100. So what is potential across A and B? Tell me, what is potential across A and B? Let us try to find
Let us try to find whatever we can. So potential at VAB is equal to what? Tell me. I guess all of you know, so it is 20 volt. Hi Anna, 20 volt. Easy enough? Easy enough? Okay. ठीक है, चलो. Now, if potential is 20 volt, what is the current in this circuit? What is the current? I. I is equal to V is equal to IR. Right? V is equal to IR. I is equal to V by R. So 20 by 10. It is 2 ampere. This is 2 ampere. Now this 2 ampere is divided into these two currents. Right? So this is I1 and this is I2. I1 and I2. But we know, sir, I1 is equal to, now again, I is equal to V by R. And now I is equal to V by R. And it is given that V is equal to 100 and R is also 100. So this is 100 by 100. 1 ampere. So if I is 2 ampere, ये total 2 ampere है और I1 1 ampere है. So I2 is also 1 ampere because I2 is equal to I minus I1, which is 2 minus 1, which is 1 ampere, right? And we know that V is equal to IR, R is equal to V by I. So 100 by 1, which is equal to 100 ohm. Clear? So this is 100 ohm. Okay, next. Now tell me this one. Everyone, think about it. They are in series or parallel. पहले ये सोचो, series में है, parallel में है, क्या है? Think about it. Is it series or parallel? The circuit is in series or parallel? Okay, Jashan, very good. Very good, 10 by 3. Now, this problem is classic example of बेवकूफ बनाना. Yes or no? Right? Classic example of बेवकूफ बनाना. है ना? Yes or no? सर शॉर्ट सर्किट है, ये दोनों शॉर्ट सर्किट है, ये भी शॉर्ट सर्किट है, ये भी शॉर्ट सर्किट है. Yes or no? Tell me. Yes or no? Right? पूरा बेवकूफ बनाया गया यहाँ पे. क्योंकि सर करंट क्या है? करंट ये पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, सर तीनों पोटेंशियल सेम है सर. एवरी पोटेंशियल इज सेम. सर पोटेंशियल इज सेम, देन these two resistor are useless. This circuit is as good as connect कर दो ऐसे, दोनों हटाकर कनेक्ट कर दो. as simple as that. Means this is the only resistance, right? So I is equal to V by R, 10 by 3, as simple as that. Okay, right? समझ में आ गया सबको? This is a classic example of बेवकूफ बनाना. Okay, short circuit पे बेस था. Next. In the circuit shown, the potential difference between X and Y will be easy, tell me. It can be answered in 5 seconds, not more than 5 seconds. If you're taking more than 5 seconds, so the concept is not good.
Very good, Yasharan. This should not take more than 5 seconds. The answer is 120 volt. Obviously, it is 120 volt. Sir, ये सर्किट क्या है? सर्किट तो खुला हुआ है ना सर, सर्किट खुला हुआ है. जब सर्किट खुला हुआ है, तो this point is actually this point, and this point is actually this point. है ना? Current is not flowing. Current is not flowing. So what's the potential difference between these 2 points? So 120 volt. Simple, right? Simple. समझ में आया? आया ना? Clear? Right? प्रियंका, सानिया, समझ में आ रहा है? Now solve this. Solve this. Okay, Jasharan. This is plus 9. Okay. Now let us see how. यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? लास्ट क्लास में वो सीखा था KVL. KVL, right? Yes or no? हाँ या ना? Right? तो क्या सीखा? तो यहाँ पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? BA सर, राइट? ठीक है. तुमसे पूछ क्या है? डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VB. VA माइनस VB. KVL यूज करेंगे, पूरा KVL यूज करेंगे. ठीक है, पूरा KVL यूज करेंगे. आई दिया हुआ है 2 एम्पियर. तो VA इस पॉइंट को मैं मानता हूँ क्या? मान लो A, इस पॉइंट को मानता हूँ C, इस पॉइंट को मानता हूँ D. एवरीवन स्टेप बाय स्टेप. पूरा कॉन्सेप्ट VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VB. हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? सेम है ना? KVL, राइट? लूप में 0 होता है, बट आई टोल्ड यू इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी अप्लाइड इन लूप, है ना? Now VA minus VC. VA minus VC क्या हो गया? I'll just rub it and write. VA minus VC is I into R. 2 into 2. I into R. VC minus VD. Sir, VC minus VD is this battery. And I have told you, sir, battery में करंट जब पॉजिटिव में घुस रहा है तो हम क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं. It is plus 3. Then VD minus VB. VD minus VB. VD minus VB. Sir, current 2 है और resistance 1. So it is 2 into 1. हाँ है ना? तो क्या आ गया बताओ? VA minus VB. I hope all of you understood. है ना? कितना आ गया बताओ? अब समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम कुछ नहीं करेंगे. बहुत बेसिक इक्वेशन था. तो 4 plus 3, 7 plus 2, 9 volt. That is the answer. Yes or no? Clear? सबका क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? This is a basic example of KVL. राइट? 6 लोग गलत थे, सबको समझ में आ गया होगा. हाँ चलो, सबको समझ में आ गया? Okay, very good. Right? See, I'm doing Kahoot because of you guys only, right? Basic problems. Okay, basic problems. Now this one, tell me this one. This one is super easy. Guys, try to play, right? Guys, everyone try to solve. Okay, everyone try to solve because these are very basic conceptual problems, not difficult, right? Formula putting, getting types, or just conceptual. सर टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस जो मैंने बताया नहीं, फोर्थ वाला कितना वैरी कर अच्छा, सकता वो है? लास्ट वाला. हाँ हाँ, एग्जैक्टली. 5%, 10%, 20%. हाँ सर, गॉट. Timmy,
Okay, no issues, Rohit. So see, guys, see, अभी मैंने बताया ना, red, B Roy, so red is 2, right? Violet, है ना? तो याद रखना चाहिए, नहीं तो लिख लो कहीं पे, BROY, right? BB Roy of Great Britain has very good wife, है ना? समझ में आ रहा है? Yes or no? Tell me yes or no? Yes or no? Right? उसके बाद आता है, so this is color code. उसके बाद आता है gold, silver, no color, no color. So gold का 5%, silver 10% and no color 20%, right? So ये क्या है? Red, so it is 2. Violet, violet is what? 7, है ना? Blue के बाद आएगा तो 7, 27. Orange, 3. Multiplied is 3, है ना? So it is what? Tell me. 27 into 10 power 3 ohm, right? Or then we have silver. Silver means 10%, 10% ohm. Okay, got it, everyone? Tell me, everyone got this? Hi, Anna, Priyanka, Shreya, Hema, Rahil, Mansi, Ria. Everyone is getting basic problems, board level problems. Okay. These all are board level problems. Everyone, I have told you from 12, I will focus on everything, board, CET, everything, right? Read the following questions carefully, okay? Now tell me. Easy enough, easy enough. Solve this. Step by step, step by step. Okay, very good. Right? 7 students correct, 3 students wrong. बाकी लोग try कर रहे हो ना? These two are in parallel. So इन दोनों का R equivalent कितना हो जाएगा? Guys, everyone should solve. Everyone should write these notes, right? In your notebook. I need everything in your notebook. ठीक है? So it is R equivalent of this is 10 into 5, 10 into 15 by 10 plus 15. I guess all of you can solve this. So this is what? 150 by 25, which is 6. 6. Now this is 6. 6 plus 3 plus 0.5. So it is 9.5. Ayana. Okay? Right? ठीक है? So current निकल जाएगा. Tell me. B is equal to IR. B12 दिया हुआ है. B12 is given. Right? R equivalent 9.5 we know. Ayana. So I is equal to 20 by 9.5. So what is the potential across this? Potential across this. Potential across this point. So sir, we know R equivalent is 6. R equivalent is 6. So V is equal to IR, which is 20 by 9.5 into 6. Right? सानिया पोटेंशियल सेम नहीं हो ना, बिकॉज ये दोनों भी तो है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ना. दिस इज फ्रॉम दिस 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, राइट? ओके, which is equal to this.
ओके, समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट ओके। ओके अभिराम, ऑब्वियसली यू कैन, राइट, बट मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट ना कि पोटेंशियल पहले निकालोगे, पोटेंशियल पूछा तो ठीक है। And obviously you guys can solve multiple methods, right? You can just calculate minus this, but I'm trying to find the potential first. Why? Because potential will be same here. So I is equal to this V into this R, which is 10. So the answer is 20 into 6 into 10 by, tell me, sorry, I is equal to V by R, my bad. V by R. So By divided 10. by 10 into 9.5. ठीक है, right? So 12 divided by 9.5 निकल जाएगा ना, 12 divided by 9.5. सर 1.2 आ जाएगा फाइनल आंसर. 1.2 around 1.2 है ना, ठीक है. 12 divided by 9.5 is almost around 1.2. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो पहले करंट निकालेंगे, फिर इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल देंगे, फिर इसके क्रॉस करंट निकालेंगे, बस और कुछ नहीं करना है. सानिया, स्नेहा, सॉरी बट स्नेहा, मानसी, अनिशा, अनघा, क्लियर है ये चीज? My guys, my voice is low. Is it fine? Is my Fine, voice sir. fine? Okay. Next. Tell me this one. Everyone, tell this. Yes, okay, easy, very good. Okay, very good, right? So the answer is 24 volt, है ना? Easy, right? Because here it is given that this is 0 volt. Battery डाल दिया यहाँ पे. This is 0 volt. ठीक है. Grounded means 0 volt. Potential 0 हो गया. ठीक है. Okay. And we know that R equivalent कितना हो जाएगा? Tell me. Because first concept that you have to remember, sir, this 50 volt does not mean that it will be 50 and it will be 0. Hi Anna, that is the first concept, sir. It does not mean that it is 50 and 0. It can also be plus 25 and minus 25. Hi Anna, because this is potential difference. This is just the difference. This is not the potential, absolute potential. It is potential difference. So the potential of these two terminals can be anything. It's just that the potential difference is 50. ठीक है? सबको समझ में आया first concept? Hi Anna. Right? What is R equivalent? Tell me. R equivalent कितना है? What is R equivalent? Tell me. What is R equivalent? Twenty, 25, 20 as आ गया. 7 plus 3, 10 plus 10, 25, 25 ना? And what is V? V is equal to what?
IR. So I is equal to V by R. 50 by 25. 2 ampere. Yes or no? Okay. Right? Yes. ठीक है. अब पूछा है potential at point A is. Potential at point A is. तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो रहा है? इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो रहा है? बताओ. What is the potential across this? Right? 7 plus 5, 12. 12. And current is 2. So V is equal to IR. IR which is 24 volt. है ना? अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो क्या होगा? प्लस 24 होगा. राइट? नाउ इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? 10 plus 3 13. करंट 2 एम्पियर. So it is 26. ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे. यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? -26 होगा. अब समझ में आया सबको? टेल मी. अब समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे? So point A is at plus 24 and this point is minus 26. So that the potential difference is 50. Yes or no? Clear? This concept is clear, everyone? Hema, everyone? Vinutha, Siddesh, Shreya, Imba, Sania, Samya, Priyanka, Rahil, Anisha, Jasharan, Nishita, Amish. ठीक है. Okay, very good, right? ये concept याद रखना. That battery is always potential, right? हम लोग अपने convenience के हिसाब से 0 और plus 10 plus 22 मान लेते हैं, but actually it can be anything. Okay, last question of this Kahoot. Today's basic problem solving, right? Today's basic problem solving. You are given two resistance R1 and R2, right? By using them singly in series and parallel, you can obtain four resistance 1.5, 2, 6, and 8. The values of R1 and R2 are. Very good everyone. Right? So I guess सबकी आता है. ये हम लोगों ने 10 से पढ़ते आया. Yes, 10 से पढ़ते आया हमने ये सब. Yes or no? हाँ या ना? आता है ये सब? समझाना पड़ेगा इसको. Tell me everyone. Everyone remember this. Remember these concepts. Right? R1 R2 दो resistance है ना. Equation बनता है R1 R2 का. Right? By using them singly in resistance and in parallel, you can obtain 1.5, 2, 6, 8. है ना? तो simple है. अगर 1.6 minimum है, this is minimum. तो ये parallel है. और 8 maximum. तो ये series है. Common sense हो गया. 2 और 6 are the resistance. Very simple, basic, common sense. कुछ करना भी नहीं है. है ना? Now let's see the podium. Pranjal 9, 10 out of 10 किसका? Sherry 10 out of 10, very good. Very good. Fourth right, fifth Pradhyuman. ठीक है. 66% correct. Okay, next Kahoot. Next Kahoot. Now this Kahoot would be much better, right? As compared to the previous Kahoot, this Kahoot would be better. ठीक है. Six nine 1802. So this is the first problem, right? This is the first problem. पढ़ लो एक बार, लिख लो एक बार, because यहाँ से अच्छे प्रॉब्लम्स कैसे स्टार्ट होंगे, कंपैरेटिवली अच्छे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगे. तो write it down. If voltage across bulb rated 220 volts, so this is the rating of the bulb, 220 volt, 100 watt. This is the power, 100 watt, drops by 2.5%. Okay. Rated value, then the percentage of rated value by which the power should increase is. Okay, right. Now यहाँ पे जो फॉर्मूला है क्लास 10th में हमने पढ़ा था, याद है? किसको याद है पावर का फॉर्मूला? How many of you remember the formula of power? Raise your hand. V square by R वाला. V square by R, I square R. हाँ या ना?
10th of answer, बस 10th of answer, that's it, है ना, v square by r, I square r. Yes, the power का formula is v square by r, I square r, है ना, 10th में जो पढ़ा था. क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, क्वेश्चन पढ़ लिया. डोंट वरी, हम लोग फिर से करेंगे, राइट? इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट ले लूं चलेगा ना, क्योंकि गंदा वैल्यू आ रहा है मेरे को. ठीक है, so let us see. I guess everyone have read the question. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया है. कैलकुलेशन गंदा है सर. एस्टिमेशन लिया है पूरा मैंने तो. Guys, कोई डेटा बताएगा? What was the data? So voltage was 220 volt, power is 100 watt. ठीक है, और क्या था? ड्रॉप्स बाय 2.5 2.5 क्या? 2.5% क्या? परसेंटेज. परसेंट ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू. Okay. Anyways, right? This problem बहुत कम टाइम है, तो कोई टेंशन नहीं है, चिल मारो, काफी कम टाइम था, राइट? ठीक है. Now this problem is not based on your voltage, current or all any of these things. ठीक है, right? This question is based on error, right? First chapter, unit dimension. Hi Anna, how many of you think about it? Tell me, how many of you think that, sir, this question is not actually based on this? Tell me. Voltage is dropped by 2.5%. Hi Anna, voltage is dropped by 2.5%. You're asked to find the change in power. यही पूछा था ना? Yes or no? Exactly. So we know तो that. बहुत इजी हो जाएगा उससे तो. बस वही करना है भाई, वही करना था. V square by R होता है, so we know that delta P by P is equal to 2 delta V by V, sorry, by R. 2 delta V by V plus delta R by R. Error analysis, as simple as that. कितने लोगों को याद है बताओ? कितने लोगों को याद है ये? बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था. yes or no? हाँ, आज तो था सर. राइट, तो ये हाँ, ये नहीं. तो डेल्टा P by V गिवन है 2.5%. सो डेल्टा P by V कितना हो गया? 5%. 2.5, which is 5%. अब बताओ अगर ऐसे क्वेश्चंस आए और तुम्हारा नहीं बना, टेल मी, दिक्कत है ना, या गलत अप्रोच ले लिया? सानिया, हेमांश, सर मैं v स्क्वायर बाय r से सॉल्व कर रहा. वो तो बेवकूफी है ना, है कि नहीं? एग्जाम में 5 सेकंड वाले सवाल को तुम अगर 5 मिनट दोगे तो दिक्कत होगी ना, राइट? आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन. समझ में आ रहा है सबको? सिद्धेश, समझ में आ रहा है? सिद्धेश, श्रेया, हाँ है ना, सबको समझ में आ रहा है ये? ओके. एरर एनालिसिस पता है ना, P is equal to V square by R, राइट? सो डेल्टा P by P is equal to, क्योंकि पावर 2 है तो पावर यहां आ जाता है, डेल्टा V by V प्लस डेल्टा R by R. रेसिस्टेंस में चेंज बोला नहीं है तो ये नहीं होगा, ये बोला है. रेसिस्टेंस में चेंज बोलता तब भी निकाल लेते हम लोग. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, राइट इट डाउन, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है. जस्ट राइट डाउन दी प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम लिख लो. Everyone think about it, because every problem is a concept, right? है ना? So temperature T1 is 22 degrees centigrade. Everyone think about it. Volume
1 liter. 1 liter. I'll just write it down. 1 liter per minute, right? So 1 liter per minute. Per minute. ठीक है, हो dV by गया dt. सॉल्व। ठीक है. And this T2 is 37 degrees centigrade. The power of the geyser. Very easy question. Very easy question. हाँ, specific heat of water 4200 ना, 4200 जूल पर केजी, है ना, यही होता है ना, और 4.2 जूल हाँ किलो, सर, ठीक है. 200 ही होता है। तो यहाँ पे क्या यूज करना है, कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, टेल मी. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर. सर, इट इज dq by dt. Power is dq by dt. Yes or no? Power is dq by dt, right? है ना? Okay. And q is the heat lost or heat gained. Tell me, क्या होगा आंसर? Everyone. I guess I had given enough time. You just have to calculate. Just have to calculate MC delta T, MS delta T. Okay, very good. कोई बताएगा कि क्या किया गया है? रौनक, can you speak? कि क्या किया गया है यहाँ पे? What is Q? बताओ. What is Q? So Q is equal to MS delta T. हाँ या ना? Sir, S दिया हुआ है, delta T दिया हुआ है. What about M? What about M? Okay, Abhiram, tell me. हाँ सर, ये ms delta t by t टाइम टेकन 60 सेकंड्स था, वैसे करके कर. Exactly. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास ना देकर तुमको 1 लीटर दे दिया, बट वाटर है ना, पानी है ना, पानी को पता है. वाटर की डेंसिटी तो 1 होती हाँ 1 होते हैं, तो 1 के जी. सिंपल. तो दिस इज 1, है ना, 1. और यहाँ पे पर मिनट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 60 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना, है कि नहीं? सो 1 into हाँ 420 सर, into डेल्टा टी कितना है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 35 सर। 15 डिग्री बाई टाइम कितना हो गया, 60 सेकंड्स, है ना? तो कैलकुलेट कर लेंगे. बताओ 4 टाइम्स 4 से कितना बाढ़ गया, 1050. 1050। अब बताओ, क्वेश्चन इजी था कि डिफिकल्ट था? टेल मी, दिस क्वेश्चन वाज इजी और डिफिकल्ट? विनुता, टेल मी. It just use the basic, very basic concept of thermodynamics, right? है ना, very basic concept of thermodynamics. ऐसा कुछ नहीं जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है. Okay, next. Next. Read the following questions carefully. Take your time, take your time. This is a very good example of KCL as well as KVL. टेंशन मत लो, हम लोग समझा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को समझाएंगे, ठीक है? Just explaining all the questions because each and every question is a concept. Rohit is present. Jitendra absent. Viran present. Mansi present. Tanya present. Riya present. Present. Srihari, Ansha, Meet, Siddharth, Amish present. Amish, समझ में आ रहा है सबको तुमको? विवेक एब्सेंट. कृष्णा, कृष्णा समझ में आया सब कुछ? हाँ सर. ठीक है, वेरी गुड. नहीं समझ में आया पूछ लिया करो, ठीक है, मार्क कर लिया करो. ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं. राइट, आंसर खुल के पहले का क्वेश्चन देखते हैं,
है ना, सोचेंगे पहले कि कैसे सॉल्व करना है इसको. Now, as I told you, this is a very good example of or very basic example of KCL और KVL, है ना, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. Now, यहाँ पे G पॉइंट करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर. Okay, right? So in the part of the circuit, the potential difference between VG and VH between point G and H will be, ठीक है. Okay, very good. Now एक चीज बताओ, this is a junction. एक ये जंक्शन और एक ये जंक्शन है, हाँ या ना, यस और नो. दो जंक्शन है, राइट, है ना. सबको बहुत बेसिक स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक. सर यहां से आ रहा है मेरा 2 एम्पियर, बिकॉज सर एक ही वायर है ना, तो 2 एम्पियर का 2 एम्पियर आ रहा है. और सर इधर 1 एम्पियर जा रहा है और इधर 3 एम्पियर जा रहा है, राइट. तो अगर इधर 1 एम्पियर जा रहा है, इधर 3 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ से कितना जा रहा होगा, टेल मी, कॉमन सेंस, यहाँ से कितना जा रहा होगा यूजिंग KCL, कॉन्सेप्ट ऑफ KCL, कितना जा रहा होगा, सबको बताओ. और सर 4 है ना, 4 सर 4. तो अगर ये 2 है और ये 4 है, तो यहाँ पे H से ऊपर कितना आ रहा होगा, 2 सर. 2. तो ये तो सबको समझ में आ गया. पहला KCL कॉन्सेप्ट समझ में आया, पहला कॉन्सेप्ट KCL का समझ में आया, हाँ या ना. So this is the classic example of KCL. क्लियर हो गया ये चीज. सर अब मुझे करंट पता चल गया है, अभी मुझे करंट पता चल गया है, मुझे क्या चाहिए, मुझे पोटेंशियल चाहिए सर, है ना. तो मैं क्या यूज करूंगा, केवीएल यूज करूंगा. तो इस पॉइंट को G बोला मैंने, इस पॉइंट को A बोला, इस पॉइंट को मैंने बोला B, इस पॉइंट को बोला मैंने C, और ये हो गया H. तो देखो कि मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा, मैं एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ. VG माइनस VA प्लस VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VH इज इक्वल टू VG माइनस VH. यस और नो, स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप मैंने मिस नहीं किया. क्लियर. नाउ व्हाट इज VG माइनस VA. सर VG माइनस VA, करंट का डायरेक्शन इधर है सर, हम जा भी इधर रहे हैं, so it is I into R, which is 2 into 4 plus VA minus VB. Sir, current is entering in negative junction, right? तो हम क्या मानेंगे, +3 की -3. Tell me, according to the convention that I am following. Very good. -3. ठीक है, very good. Plus VB minus VC. VB minus VC. Current हम लोग इधर माना है, VB minus VC. So it is what? 2 into 2 plus VC minus VH. अब बताओ, अगर हम जा रहे VC minus VH, करंट किधर फ्लो कर रहा है, उल्टा फ्लो कर रहा है, हाँ या ना. समझो कॉन्सेप्ट समझो. मैं आ रहा हूं C से H की तरफ, करंट फ्लो कर रहा है किधर, H से C की तरफ. यहाँ पे मैं क्या लूंगा, प्लस की माइनस, प्लस. अरे करंट नेगेटिव में फ्लो कर रहा है भाई, माइनस. हाँ सर, सर मेरे कन्वेंशन में मैं बाकी सारा माइनस ले लिया, ये वाला प्लस किया था. अगेन राइट, उल्टा पुल्टा. मैं ये ले रहा हूँ ना, मैं ये कन्वेंशन ले रहा हूँ, है हाँ ना. सर, हाँ सर, हाँ राइट, सर, मैं उल्टा कर रहा. C से H जा रहा हूँ, करंट C से H जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे उल्टा है, H से है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, -2 into 1 इज इक्वल टू, जब मुझे चाहिए VGH. अब कैलकुलेट हो गया, 8 - 3 + 4 - 2 इज इक्वल टू VGH. सिंपल आता है यार, सिंपल आता है. आई थिंक इट इज मच बेटर, राइट. मुझे जनरली यही अच्छा लगता है यूज करना. तो 8 + 4 12 - 5 इज इक्वल टू VGH. अपने आप आ गया ना, अपने आप आ गया, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं. VGH इज इक्वल टू 7, हाँ या ना, बताओ, आ गया. सो अब समझ में आया, वेरी बेसिक एंड वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ KVL as well as KCL. इजी क्वेश्चन, बट देख के डर जाओगे जनरली. सबको समझ में आ गया ये, सानिया, निशिता, हिम्बा, प्रियंका. चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें. हेमा, विनुता, आगे बढ़ें. I'm recording the class, so you can just go through it once. Okay, right? चलो next.
सॉल्व करो, सबको सॉल्व करना है। ओके सॉल्व करो, फॉरगेट अबाउट, यू विल गेट द आंसर, डोंट वरी। ये बेवकूफी है, गलत टाइम दिया हुआ है, ठीक है, बट यू विल गेट द आंसर, नो इश्यूज। अच्छी बात है, तुमको आंसर पता होगा, बट सॉल्व करो। ठीक है, एनीवे सॉल्व करो इसको, सॉल्व दिस। टेक योर टाइम, आराम से टाइम लो। ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है, पहली बात काफी सिंपल प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, सोचना है, अदरवाइज ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है। सुहास समझ में आ रहा है? सुहास इज हियर, सुहास इज एब्सेंट। सौम्या लक्ष्मी इज एब्सेंट। नीट वाले सारे लोग एब्सेंट हैं। श्रेया प्रेजेंट, प्रियंका प्रेजेंट, निष्ठा प्रेजेंट, खुशी एब्सेंट, अंजलि एब्सेंट, प्रवेश एब्सेंट। नीट वाले ही सारे एब्सेंट हैं। निमिता हेमा प्रेजेंट है, सिद्धेश प्रेजेंट है, इनका प्रेजेंट है, प्रियंका निशिता प्रेजेंट है। ओके नाउ अब देखो, एवरीवन थिंक अबाउट इट, राइट? ओके सी आंसर इज व्हाट? ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना? कॉमन सेंस सर कितना? टेल मी, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? टेल मी, बताओ। 0। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 0। समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? सर आंसर 2/3 होना चाहिए ना? हाँ सर, मुझे भी 2/3 आ रहा है। तो गलत है फिर, और क्या? इसमें तो इसलिए तो मैं बोल रहे 2/3 मार्क भी कर दिया था, फिर देखा 1 है तो वही सोचा था कैसे 1 एम्पियर है। ये इतना समझ में आया कि नहीं? अभी जो मैंने बोला वो समझ में आया कि नहीं? राइट? हाँ हाँ या ना? सर, यही किया था सर। क्योंकि सर देखो मुझे ना, 2/3 आ रहा है। मेरे को भी 2/3 है। 2/3 ही होगा, बिकॉज ये रेजिस्टेंस 2 है और ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया, तो 2/3 ही होगा। ठीक है, हाँ सर। राइट? बिकॉज यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया, तो ये खत्म, पूरा लूप खत्म, है ना? और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया, राइट? बिकॉज सेम पोटेंशियल पे है ना, ये सेम पोटेंशियल पे है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन बन गया, तो ये पूरा खत्म हो गया, तो सिर्फ ये सर्किट बना बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। ओके नाउ जो आंसर दिया है, वो कैसे दिया है? वो क्या सोच के किया होगा? वो ये सोचा है कि ये पूरा जो है, ये खत्म हो गया, दिस इज फिनिश, और ये जो है, ये इसको दोनों पैरेलल में ले लिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम, मैं बता रहा हूँ, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम ना, राइट? यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल क्या है? सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, हाँ सर। राइट? तुम लोग 2.3 कैसे आया वो समझाया मैंने, कि तुम लोगों ने पूरा इसको क्या मान लिया, ठीक है, राइट?
but I told you that there's a difference, है ना, zero मान लिया इसीलिए. But if you see from second point of view, right, you see sir potential at this point, potential at this point, right, okay, is same. Potential at this point, potential at this point is same. ठीक है, तो ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, हाँ या ना, राइट. तो 2 और 2 पैरेलल में होकर कितना हो जाएगा, 2 और 2 पैरेलल में होकर कितना हो जाएगा, 1. सो इट मींस ये सब हटके एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लग गया है. समझ में आया, ये सब हटके एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लग गया, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज की पैरेलल. राइट, बट उससे भी गलत हो जाएगा, समझ में आया, उससे भी गलत हो जाएगा. ठीक है, राइट. तो 1 तो आंसर आने वाला नहीं है ना. either it is what, either it is 0.5 or 2/3. But if you think logically, sir, okay, even though these points are at same potential, these points are at same potential, right, why the current will flow like this? Because this is not a short circuit, right, it's not a short circuit. ठीक है, समझ में आया, right. अब समझ में आया कि हम जीरो क्यों नहीं मान सकते, बिकॉज सर ये शॉर्ट सर्किट नहीं है सर, right. Potential difference between these 2 points are equal, not the potential. I cannot say the potential is equal. Who knows, potential might be different, right, but potential difference is same. ठीक है, बट अगर पोटेंशियल, अगर तुम यहां से यहां तक का देखते हो, पूरा यहां से यहां तक का, ओके, यहां से यहां तक का, थिंक अबाउट इट. तो यहां से यहां तक का जब जितना पोटेंशियल डिफरेंस हो उतना ही यहां तक, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है ना. तो अगर वैसे सोचोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये पूरा पूरा सर्किट हट सकता है. ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर बी ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए. ठीक है, बट आई टोल्ड यू कि आंसर क्या क्या सोच सकते हो, राइट, बट मेरे हिसाब से आंसर बी ही होना चाहिए. ठीक है, 3 बार केवल आगे बी आएगा ना. हाँ सर, 3 बार केवल लगा के भी बी आएगा. तो आंसर बी ही होगा. ठीक है, बिकॉज हाँ when the सर. potential difference is same, but इसके पीछे potential difference सेम हो गया ना. ठीक है, राइट. ओके, समझ में आया सबको, ये सबको समझ में आया, तानिया, निशिता, एवरीवन, रौनक, प्रद्युमन. नेक्स्ट, अभी अभी इस पे 2-3 दिन ना हम लोग बस प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, 2-3 दिन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना है. ठीक है, अभी आज बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हो रहे हैं, फिर मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बिकॉज सीरीज पैरेलल में काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं. ये पूरा भी करंट चलेगा, ये पूरा भी करंट चलेगा. हो गया सर. ओके, so नोट कर लो, सबने नोट कर लिया है. सो बैटरी ऑफ 4 सेल इन सीरीज ईच हैविंग ईएमएफ 1.4 वोल्ट. ठीक है, सिंपल है काफी, 1.4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2. ओके, मतलब बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है. ओके, सो इट्स बेसिकली सर्किट अगर बन गया तो इजी है, राइट. आई गेस सर्किट सबसे बन जाना चाहिए. तो बिना सर्किट के ही हो गया मेरा तो. ठीक है ना, मतलब सर्किट से ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा. सो ये 4 है, 4 बैटरी दिस बैटरी सीरीज and it is used to charge a small 2.2 volt accumulator, right. So this is used to charge, ऐसे है, charge है ना, internal resistance, right, 0 है इसका. तो यही है ना, यही सर्किट है, हाँ या ना.
हाँ सर। राइट। सो अब बताओ इसका चार सेम डायरेक्शन में सीरीज में हो रहा है तो सर वो सारे को 1.4 शिफ्ट करके बैटरी को एक साइड रेजिस्टेंस को एक साइड रख दिया था। हाँ वही कर रहे हैं 1.4 into 4 हो गया इक्वल टू बैटरी, सो इट इज लाइक 1.4 into 4 कितना हो गया बताओ 5.6 5.6 सर। 5.6 और ये चार 5.6 -2 हो जाएगा सर। नहीं वही बोल रहा हूँ चार रेसिस्टेंस और ये क्योंकि दूसरा बैटरी भी ऐसा है राइट तो ऑब्वियसली -2 हो जाएगा बट मैं भी बता रहा हूँ डायरेक्टली नहीं कर रहा। और ये कितना है दिस इज 2 into 4 8 ओम, ठीक है ताकि सबको समझ में आ जाए होगा ये है ना। सो अब ये 5.6 और ये माइनस कितना है 2 so it is 3.6 right 3.6 और resistance is 8 so voltage 3.6 और resistance 8 कितना हो गया B हो गया तुम्हारा 3.6 resistance हो गया 8 I guess easy है 0.45 दिए हैं सर अभी। आंसर तो अब मैंने बता दिया ठीक है। ये 20 सेकंड क्या सोच के दिए समझ नहीं आता सर। राइट उन्हें आंसर लगता है कि पहले वो टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, सिर्फ आंसर लगाने का रहता है। ठीक है 0.54 सबको समझ में आ गया था ना ये सबको समझ में आया सबको ये राइट साम्या अमीश ओके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ये बताओ मैं इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहा था। बनाओ अभिराम आर्यन सॉल्व करो इसको। Sorry guys, I was not recording this. Okay. So I know that VM as VB is 25. It is given. And I'm using KVL. So VM minus VB is written as -30 because current is entering a negative terminal plus I1 R1. I1, this is I1 and this is R1. So I1 is 5 ampere. पहले वाले में 5 ampere. Again, in the same way, right? For second look, right? I can say VAB is equal to what? Now यहाँ पे प्लस में घुस रहा है, so it is 20 plus I2 R2 आया ना मैं पूरा साइड में लिखा हूँ T/10 आएगा सर सेकंड वाला। right? So this I1 is equal to 5 ampere आ गया। Now this is equal to what? 20 plus right I2 into 5 is equal to 25. So I guess you can calculate sir I2 is equal to 1 ampere हाँ या ना। If this is 5 I2 is 1 ampere. Clear हाँ या ना यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। Okay, now third look क्या सर voltage in third loop this is again -5 plus I3 R2 guys am I audible? So I3 is equal to what? ये उधर जाएगा it is 30/10 which is equal to 3. I3 is 3 ampere. Now last equation. Sir, this is plus 10 plus I4 into 5 is equal to 25. Right? So इधर जाके और ये क्या हो जाएगा? 25 minus 10, 15. So I4 is equal to 15/5, which is 3. So I4 is also 3. I4 is equal to 3. Yeah. अब जोड़ो कितना आ रहा है? 3 plus 1 plus 5 कितना हो गया? 12. अब बताओ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था किसने ऐसे बनाया किसने ऐसे सॉल्व किया सर ऐसे ही
राइट, समझ में आ गया? ये दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ KVL. क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? टेल मी, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? हाँ या ना? ठीक है, आई गेस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है? जब भी बाद में पूछना होगा पूछ लेना, ठीक है? Solve this. Everyone try to solve this. लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था। सिर्फ 6 आंसर्स, ओके ओके राइट। अब देखो, सबको ही देखो, सबको ही देखो। इस अरेंजमेंट से तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, है ना? बट इफ यू लुक क्लोजली, इफ यू लुक क्लोजली, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ, टेल मी, series parallel circuit if you remove one resistance, है ना? राइट, थिंक अबाउट इट। ये D हो गया, ये D है, ये पॉइंट G है ना? ये D है, ये पॉइंट G है, तो सिंपल सोचेंगे ना। सो ये D पॉइंट है, राइट? बैटरी है, तो D पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस निकले हुए? D पॉइंट से 3 रेजिस्टेंस निकले हुए, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस। तो तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली G से मिल रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली G से मिल रहा है, डायरेक्टली G से मिल रहा है। ये जो ये रेजिस्टेंस है, राइट, ये एक मिल रहा है किससे? टेल मी, सी पॉइंट, ए पॉइंट और एफ पॉइंट। सी पॉइंट, ए पॉइंट, एफ पॉइंट एक्चुअली एक ही है ना? यहाँ पे, राइट, दिस इज सी पॉइंट, राइट, इससे ये भी कनेक्टेड है, इससे ये भी कनेक्टेड है, तो यहाँ से 2 कनेक्टेड है, यहाँ से एक ऐसे चला गया, एक ऐसे आ गया। यस और नो? यस और नो? राइट, हाँ या ना? और ये जो है, ये जो भाई साहब है, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? ये किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, राइट? और ये वाला जो है, ये वाला, वो डायरेक्टली जी से कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड विद जी, ठीक है? राइट, ओके ना? अब तुम जब देखोगे, राइट, ऑब्वियसली मेरा थोड़ा डायग्राम उल्टा पुल्टा बन गया है, बट अगर तुम देखोगे तो क्या हो गया? ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ये दोनों सीरीज, फिर इससे पैरेलल, फिर ये और ये सीरीज, फिर इससे पैरेलल। हाँ है ना? सीरीज पैरेलल है कि नहीं? टेल मी, यस और नो? हाँ है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला और ये वाला क्या हो गया? सीरीज में हो गया सर, और ये इसके साथ पैरेलल हो गया, फिर ये पूरा और ये सीरीज हो गया, फिर ये पूरा इसके साथ पैरेलल हो गया, ठीक है? राइट, और सबका RR11 दिया हुआ है तो बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, 5 क्वेश्चन मिलाकर।
ओके लीव दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को छोड़, डिच मारते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को डिच मारते हैं। ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो। ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। ओके लेट्स सी, 6 लोग सही हैं। ओके बाकी लोग सब देख रहे हो ना, क्वेश्चन लिख रहे हो ना? नो इश्यूज रोहित, राइट, नो इश्यूज, बस क्वेश्चन देखते जाओ, राइट, क्वेश्चन देखते जाओ, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्ट्स, राइट, है ना? अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। देख के डर लगेगा, देख के लगेगा तो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। नाउ वी नो दैट सर इसके क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, यस और नो, इसके क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, राइट? तो मेरे पास यहाँ पे देखो कि कितने लूप हैं। दिस इज बेसिक एग्जांपल ऑफ KVL, सिंपल, राइट, दिस इज बेसिक एग्जांपल ऑफ KVL, है ना? राइट, अगर तुम इसको ना देखकर, अगर तुम ऐसे देखो इसको, हम लोगों ने सेम ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, राइट, सेम ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। मैं तुमको दिखाता हूँ, तुम इसको ऐसे लिख दो, ठीक है? दिस सर्किट इज एक्चुअली दिस सर्किट, राइट? यहाँ पे मैंने इसको और इसको मिलाकर 7 कर लिया, दिस इज 7 ओम, ठीक है ना? बिकॉज दीज टू आर इन सीरीज, दीज टू आर इन सीरीज, राइट? तो इसको और इसको मिला के मैंने क्या कर लिया? मैंने 7 ओम कर लिया, दिस इज 7 ओम, दिस इज 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये क्या है? दिस लूप, राइट, दिस लूप इज कॉमन बिटवीन दिस एंड दिस, है ना? ये दो लूप के बीच में ये कॉमन है, तो ये कॉमन वाला हो गया, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 4 वोल्ट, दिस इज आल्सो 2 ओम, राइट, एंड दिस इज 6 वोल्ट। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, टेल मी, बताओ किया है कि नहीं किया है, हाँ या ना? किया है सर। है ना? राइट, so you can use basic KVL, you can use KVL in these two loop, I1 मान के I2 मान के इक्वेशन सॉल्व कर लो, ठीक है? So let us solve, I'll just write the equation, you have to solve, ठीक है? जब इक्वेशन लिख रहा हूँ, ऐसे इक्वेशन लिख रहा हूँ, this is I1 and this is I2, this is I2, ठीक है? तो क्या होगा? It is 2 into I1, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, शॉर्टकट, डायरेक्टली शॉर्टकट, लूप वन में I1 into, अब बताओ लूप वन में कौन कौन से रेजिस्टेंस है? लूप वन में कौन कौन से रेजिस्टेंस है? 2 और 2, this 2 and this 2, राइट? So 2 plus 2 4 ohm minus I2 कॉमा, अब 1 और 2 के बीच में कॉमन रेजिस्टेंस कितना है? सर जस्ट 2 वोल्ट, सर 2 ओम, तो 2 ओम, 2,
that is I1 into 4 minus I2 into 2. अब देखो करंट यहाँ पे जब इंटर कर रहा है तो निगेटिव में और यहाँ इंटर कर रहा है तो पॉजिटिव में, सो इट विल बी व्हाट -4 + 6 इज इक्वल टू 0. ये हो गया पहले लूप का इक्वेशन, है ना. पहले लूप का इक्वेशन क्या हो गया? सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट I1 2I1 minus I2 is equal to what? -1. yes or no? इधर सॉल्व उधर जाओगे तो -1 आ जाएगा. दिस इज फर्स्ट लूप का इक्वेशन. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सेकंड लूप का इक्वेशन, सेकंड लूप का इक्वेशन क्या हो जाएगा? अगेन I1 I2 में कॉमन क्या है? सिर्फ 2. इट इज -2I1 प्लस I2. नाउ I2 में क्या है? 2 7 + 2 9. और व्हेन यू टॉक अबाउट दिस current, right, when you talk about this current, तो इधर 5 में नेगेटिव है, 4 में पॉजिटिव है, so it is -5 + 4 is equal to 0. So it is -2I1 plus 9I2 is equal to 1. So this is second equation, equation B. So first equation, second equation put कर दोगे तो I2 का वैल्यू क्या आएगा? I2 वैल्यू यहाँ से यहाँ पे उठा के पुट कर दो, या 2I1 डायरेक्टली पुट कर दो ना. 2I1 क्या है? 2I1 is I2 minus I1. It is minus I2 minus 1 plus 9I2 is equal to 1, है ना. तो निकल गया. Tell me. So tell me 8I2 is equal to 0. So I2 is equal to 0 आ गया. ठीक है, I2 0 हो गया है तो I1 निकलेगा. I1 कितना हो गया फिर? I2 0 है तो I1 कितना हो गया? -1/2 हो गया. yes or no? राइट. तो अगेन माइनस तो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है क्या? माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन क्या है करंट का, बट वैल्यू क्या हो गया? 1/2 हो गया. सबको समझ में आ रहा है? सॉल्व करने पे I2 क्या हो गया? 0. I2 0. If I2 is 0 then I1 is what? -1/2, which means जो हमने डायरेक्शन माना वो उसका उल्टा है, बट मैग्नीट्यूड वाइज कितना है? 1/2. आंसर कितना है? 1/2. क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया ये? लास्ट क्वेश्चन. ओके, इसको डिच मारते हैं. अभी इसको डिच मारते हैं. ठीक है, डिच मार दो उसको. राइट, क्योंकि ये थ्योरी है तो थ्योरी हम लोग क्लास में कर लेंगे. दिस इज जस्ट अ थ्योरी, राइट, तो उसको छोड़ देंगे. ओके ओके गाइस, आई गेस ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, है ना. सीरीज, पैरेलल, केवीएल, केसीएल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. ओके, सो ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व द मॉड्यूल्स का इन क्लास एक्सरसाइज ट्राई करना. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूल्स का इन क्लास एक्सरसाइज करेंगे. पहले पॉइंट 1 पॉइंट 2 का. ठीक है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 अगर तुम मॉड्यूल देखोगे ना तो हम लोग का पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 हो चुका है. पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 खत्म हो चुका है. ठीक है, ओके, राइट. चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय. ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर.